We'll be starting with lesson 7, corporate social responsibility. Now, it's a very, very, very important chapter, and not only in the exam point of view, but also in the practical aspects. This is a very important chapter, and not only for company secretary, but all professionals and directors. Let's understand what happens. First of all, do you think that the companies there is a responsibility towards society? That the companies have a certain responsibility to other society? Yes. 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 So this chapter also believes that it says that the corporate have a certain responsibility towards the society. Now, responsibility है तो क्या करे फिर? So what happened? Government of India, they had made certain 2009 regulations. These were the CSR regulations 2009. In that, they had told that you should voluntarily spend a certain amount for the development of the society. You think people are going to take this very seriously? The corporates? No. No. Whenever there is anything written voluntary spend karo. So people will say, यार रहने दो बाद में करेंगे. Then government, they brought another policy, CSR policy 2011. In 2000 policy 11, they increased the number of principles. They gave in a more kind of a enlightenment on why it emphasizing the role of corporates towards the society. Again they said कि voluntarily spend करो. You think कोई भी इसको अभी भी seriously लेगा? No. नो. फिर बाद में गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया 2013 एक्ट के अंदर, कंपल्सरीली सेक्शन 135 ऐड किया और बोला कि आपको कंपल्सरी 2% ऑफ एवरेज 3 years प्रॉफिट बांटना पड़ेगा. नाउ टेल मी, विल दिस वर्क? Yes. So this perfectly worked because they didn't give an option. Voluntarily नहीं है, mandatorily. Okay, so let's see what CSR के बारे में पहले एक intro देते हैं. First of all, what do you mean by corporate social responsibility? It means that there is a certain responsibility of corporates towards society. The provisions were there. First, voluntary guidelines 2009, then 2011 CSR guidelines, CSR voluntary guidelines, which nobody really followed except for few companies like Tata's. Then they said, now we need to stop requesting them and we need to start ordering them. So they made something called as section 135 of Companies Act. This has to be read with schedule 7. कंपनीज एक्ट में भी काफी सारे शेड्यूल्स है. ये कौन सा शेड्यूल है? शेड्यूल 7. तुमको बाय हार्ट होना चाहिए. यू विल कम टू नो व्हाट इट इज. लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या बोला सीएसआर ने? दैट यू फर्स्ट, आई विल टेल यू द प्रोविजंस इन शॉर्ट. फर्स्ट इट स्पोक अबाउट एप्लीकेबिलिटी. Tell me one thing, you think all the companies should be required to distribute their profits towards the benefit of society? No. 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 The So companies which are doing good. वेरी गुड. सो व्हाट हैपेंड? एक कंपनी बोली कि मैं खुद लूट गया हूँ, मैं खुद लॉस में चल रहा हूँ, मैं क्या सोसाइटी का बेनिफिट करूंगा? कोई मेरा बेनिफिट करे पहले. तो दे सेड ठीक है चलो, बट एटलीस्ट बिग कॉर्पोरेट्स कैन बी मैंडेटेड. सो किसके ऊपर अप्लाई होता है? दे हैव गिवन, लेट्स सी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट्स. सीएसआर एप्लीकेबिलिटी, ये अपना एप्लीकेबिलिटी है. नाउ लेट्स सी हु दे हैव गिवन. Any of these three categories में, if your company falls, you have to compulsorily distribute how much? At least 2% of the average profits of past 3 years. तो अगर ये थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो तुमको 2% बांटना है ऑफ एवरेज 3 years नेट प्रॉफिट.
अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ से मिलेगा तुमको? तो ये तुमको लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ढूंढ देंगे, इसका कैलकुलेशन 198 के अंदर दिया। नाउ लेट्स सी किसके ऊपर अप्लाई होता है। सो इफ द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी is 500 crores or more, turnover is 1000 crores or more, or net profit is 5 crores or more, then they have to compulsorily distribute 2% of the average 3 years profit. So let's see what were the limits given applicability mein. 3 limits they have given. कौन से थे? Net worth, turnover and net profit. Net worth कितना था? 500 crores. 500 crores. Turnover was 1000 crores. 1000 crores, and this was 5 crores. 5 crores. 5 crores. So if in the past 3 years, okay, if this was the details in the past 3 years, then you have to compulsorily distribute that amount. तो चलो ठीक है, let's take for a company like Tata's. Tata's would come under this category. उनका net profit 5 करोड़ के ऊपर होगा, टर्नओवर भी हो सकता है इससे ज्यादा। ये तीनों में से कोई भी हिट हो गया ना, 1, 2 या 3 में से कोई भी हिट हो गया, तुमको कंपल्सरी 2% ऑफ एवरेज 3 years नेट प्रॉफिट बांटना है। सो इफ माई नेटवर्थ exceeds this limit, or my turnover exceeds this limit, or my net profit exceeds this limit, then I have to distribute how much? 2% of the average 3 years profit should be given. अब किधर देंगे हम लोग? for CSR activities. वो देखेंगे क्या है। Let's start. First, they have said कि अगर तुम्हारे ऊपर CSR के provisions applicable हो गए, ओके, सीएसआर के प्रोविजन कौन से सेक्शन में दिए हैं? एक ही सेक्शन है कंपनी लॉ में, 135. सेक्शन 135. यू नीड टू नो इट बाय हार्ट, ठीक है। इसके अंदर तुमको सबसे पहले एक कमेटी बनानी पड़ेगी। अब कमेटी के अंदर क्या लग रहा है, कौन होगा कमेटी के अंदर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, और यहाँ पे उसका देखेंगे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी रखना चाहिए वो लोग को। 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स आर जनरली आउटसाइड डायरेक्टर्स। ये कमेटी बनाएंगे। अब कमेटी बना दी, कैसे हम लोग अलग अलग किस्म की कमेटीज बना सकते हैं, तो एक ये भी कमेटी बना देंगे। कमेटी का नाम क्या होगा? सीएसआर कमेटी। इट विल बी कॉल्ड एज अ सीएसआर कमेटी। अब ये सीएसआर कमेटी करेगी क्या? what they will sit and do? They will make a policy. ये पॉलिसी क्या बनाएंगे वो लोग कि भाई हम लोग कैसे ये जो पैसा बांटना है, 2% ऑफ द एवरेज 3 years प्रॉफिट बांटना है, ये कैसे बांटेंगे हम लोग? एक पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी फॉर स्पेंडिंग द CSR एक्सपेंडिचर, द मैनर in which the CSR funds will be spent. ठीक है, फिर वो CSR फंड कितना स्पेंड करना है तो उसका कैलकुलेशन भी करेंगे वो लोग कि भाई 2% ऑफ एवरेज 3 years नेट प्रॉफिट कितना होता है वो भी निकालेंगे, फिर उसको स्पेंड करेंगे वो लोग। अब स्पेंड भी करना है तो कहीं पे भी स्पेंड, कोई पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन में दे सकते हैं? नो। तो ये जो स्पेंड भी करना है तो वो लोग बता रहे कि शेड्यूल 7 एक है। शेड्यूल 7 में क्या लिखा है कि वेयर ऑल यू कैन स्पेंड द अमाउंट, ओके, लाइक इट कुड बी दे हैव गिवन यू सर्टेन एक्टिविटीज लाइक इरेडिकेशन ऑफ हंगर, फॉर एजुकेशन पर्पसेस यू कैन स्पेंड दिस मनी, you can give it for hunger, for the most favorite and most needed also upliftment of women, you can give it to certain defense of India. any of these CSR में थोड़ा activities दी हुई है जिधर spend कर सकते हो, तो वो रहेगा, and then the end you have to disclose it. अभी disclose किधर करोगे?
बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, बोर्ड रिपोर्ट में हर साल जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो लोग एक बोर्ड रिपोर्ट बनाएंगे। और बोर्ड रिपोर्ट कौन से सेक्शन में, आई टोल्ड यू शुड नो दिस बाय हार्ट। बोर्ड रिपोर्ट, इट इज अंडर सेक्शन 134 सबसेक्शन 3। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है? इट इज अ रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट इज अटैच विद द फाइनेंशियल एनुअल स्टेटमेंट, और उसके अंदर वो लोग सब मेजर डिस्क्लोजर्स देते हैं। तो सीएसआर के भी मेजर डिस्क्लोजर्स आएंगे वहां पर। तो कमेटी बनाओ, कमेटी में एक बाहर का डायरेक्टर डालो, नहीं होगा तो चलेगा। उसकी पॉलिसी बनाओ, पॉलिसी में कहाँ पे कैसे स्पेंड करोगे वो बताएंगे। फिर स्पेंड करने का कैलकुलेशन करो, 2% ऑफ द एवरेज 3 years प्रॉफिट, एंड इट शुड बी स्पेंड फॉर शेड्यूल 7 एक्टिविटीज ओनली। वो देखेंगे शेड्यूल 7 में एक लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दी, और फिर लास्ट में तुम्हें डिस्क्लोज करना है। यहाँ तक क्लियर? अभी गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी बना दी है, देखते हैं उसके बारे में, एंड वी कैन फाइंड आउट कि कौन सी कंपनी कितना स्पेंड कर रही है, कहाँ पे कर रही है। तो टेल मी वन थिंग, एक जो था पहले शेड्यूल 7 देख लेते हैं ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल 7 CSR, सी शेड्यूल 7 में क्या क्या दिया है, वेयर ऑल यू कैन स्पेंड। सो फॉर इरेडिकेटिंग हंगर और पॉवर्टी, फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, gender equality, empowering women, for child mortality and improving maternal health, तो ये सब एक्टिविटीज के लिए आई कैन स्पेंड माय CSR फंड्स। अब ये देखो, मैं एक्टिविटीज को थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। टोटल कितनी एक्टिविटीज दी है? 10। इसमें से पढ़ के बताओ कि एक सिनेरियो था कि देयर वाज ओरिस्सा फ्लड्स, ओके। अभी कैसे फ्लड्स आ रहे हैं, देयर आर फ्लड्स इन बिहार, देयर आर फ्लड्स इन Assam. So can the company, let's say my company is there, I am Reliance Industries, I realize that I have to spend money. Can I spend for the floods, for the benefit? Yes. Answer क्या है? No. मैंने क्या बोला कि शेड्यूल 7 एक्टिविटीज में ही स्पेंड कर सकते हैं। कहीं पे भी यहाँ पे फ्लड्स लिखा है? That's a national relief fund or something like that. So national It's relief included fund. in that. So national relief fund is a separate prime ministerial fund. You're not giving specifically dedicated to Orissa floods. समझ में आया? तो क्या हुआ फिर बाद में, कंपनीज बोल रहे यार इतना प्रॉब्लम हो रहा है, डू समथिंग। तो गवर्नमेंट ने कैसे, सच अदर मैटर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो फिर बाद में वो लोग ने प्रिस्क्राइब किया। तो आई विल शो यू एन आर्टिकल। सो कंपनीज स्पेंडिंग रिलीफ, that are spending on the relief for floods hit Kerala will be allowed to count this towards their mandatory 2% on CSR initiative. समझ में आया? ये अभी जो पैंडेमिक हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं कंपनीज जो है, क्या वो रिलीफ फंड, वो कौन सा एक बनाया है गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। हाँ, सो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में वो CSR का अकाउंट होगा। अब तुमको लग रहा है यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पैंडेमिक के लिए, ये इसमें पैंडेमिक का कुछ लिखा है कि पैंडेमिक के लिए दे सकते हैं। तो मेरी कंपनी के पास में प्रॉफिट्स है जो मेरे को बांटने हैं, CSR फंड्स है मेरे पास जो सोसाइटी के लिए, तो यहाँ पे अगर शेड्यूल 7 में नहीं है ना तो मैं नहीं दे सकता। तो यहाँ पे लिखा है पैंडेमिक के लिए दे सकते हैं, नहीं। बट गवर्नमेंट फिर अलग से नोटिफिकेशन ला सकती है कि अगर आप ये हमारे इसमें दिए तो हम काउंट कर लेंगे आपका CSR एक्सपेंडिचर। सो लेट्स सी इफ इट इज देयर, PM रिलीफ फंड एंड CSR, वेदर CSR में काउंट होता है। सी नाउ कंपनीज के पास में भी रिलीफ फंड्स होते हैं जो उनको मैंडेटरीली बांटने ही पड़ते फॉर द बेनिफिट। सो मोदी गवर्नमेंट अमेंड्स द कंपनीज एक्ट, मेक्स PM केयर एलिजिबल टू रिसीव CSR फंड्स। सो नाउ इमेजिन इफ आई एम अ कंपनी, और अभी कैसा एक किस्म का ब्रांड वैल्यू हो रहा है, एक किस्म का
स्नॉब अपील हो रहा है कि आई हैव स्पेंट सो मच फॉर दिस, आई हैव गिवन सो मच फॉर रिलीफ फंड, एंड दे पुट इट ऑन देयर Twitter and all of that. Now, do you need to show it? But people show it so that they also get a sense of goodwill, which is also there. And इनका CSR फंड भी यूज हो रहा है. समझ में आ रहा है? उनको तो वो ऐसे ही स्पेंड करना है, तो कहीं और डालने से अच्छा कहाँ पे डालना चाहिए? CSR PM केयर फंड्स में डाल दो. तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट has bought a gazette in the notification that allow PM care fund to receive CSR from corporates. तो इमेजिन कितना पैसा आया होगा इनके पास में ये फंड के अंदर, बिकॉज इट इज नॉट ओनली इंडिविजुअल्स बट इवन बिग कंपनीज विच विल नाउ गिव देयर CSR फंड्स इन दिस. समझ में आया ये? नाउ इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक पोर्टल भी बनाया है. पोर्टल क्या है? CSR, यू कैन सी दिस, CSR गवर्नमेंट ऑफ इंडिया gov.in. अब इसके अंदर क्या लिखा है? They have given a few history and CSR legislation section. Legislation में कौन से sections दिए हैं यहाँ पे? Section 135. Read with कौन सा schedule पढ़ रहे हैं हम लोग? Schedule 7. Okay. अब explore CSR data. You can even find out कौन सी कंपनी ने कौन से areas में ये किया है. See, businesses need to go beyond the interest. ये सब दिया है टाटास का. So let's see company specific CSR data. तो जरा देखते किसने कितना स्पेंड किया. कौन सी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है तुमको? Anything? So we'll come to know where are they spending their funds. So as a citizen of India, I can see that where the companies are spending. टाटास का देखते हैं. तो यहाँ पे कंपनी का नाम, so let's say टाटास. So every year they will also prepare a report. ये जो report भी एक specific format में आएगा. Now see search results में कौन से एक टाटास का जानना है? टाटा कॉफी, टाटा ग्लोबल, टाटा कंसल्टेंसी, TCS का निकालते हैं इनको. So what do you think they must be spending on? What would you spend if you had compulsory you have to distribute a certain amount? What do you think is needed? Education. Hunger तो why is it taking so much time? Let's see. Till that we'll just go to other till that loads. Okay. So we'll start now from your module. So this is it. This is the chapter. So the chapter talks about make a committee. That committee makes a policy. The policy will then spend the money, and the money will be spent as per Schedule 7 activities. Now, I told you एक voluntary guidelines 2011 का भी था. They had 2009 also voluntary guidelines, but these were all voluntary. Voluntary guidelines 2011, ये भी voluntary guidelines 2009. Then nobody listened. Then they had to make a law under Companies Act 2013. That is section 135. So we had seen कौन से limits there? 500,000 and 5 crores. Net worth, turnover or net profits. So CSR is applicable to companies which fulfills any of the following criteria. तो ये इसमें से कोई भी criteria में if you have fallen into this criteria, CSR provisions will be applicable. तो सोचो हम लोग यहाँ पे we have fallen. तो यहाँ पे देखते हैं ये दिया है यहाँ पे सेजेशन. एक बार अगर लग गया मेरे ऊपर ये CSR का बांटना ही है तो कभी ये सीज होगा. I have to every year keep giving now. So they are saying that एक बार अप्लाई हो गया ना तो फिर 3 साल लगातार तुम लिमिट्स के अंदर हो, ये तीनों लिमिट्स के अंदर हो, देन ओनली वो नहीं लगेगा. लेट्स सी. CSR rules specify that a company which does not satisfy the specified criteria for a consecutive of 3 years is not required to comply with CSR obligations. तो सोचो अगर मैंने 1 साल में लिमिट के अंदर चला गया तो do I have to follow?
No. Yes, you have to follow. It has to be 3 consecutive years. I should not satisfy the criteria. Then it will not apply. समझ में आया? Implying that a company not satisfying any of the criteria in a subsequent financial year would still need to undertake CSR activities unless it ceases to satisfy for continuous 3 years. Now next is committee. You have to make a committee. Can you make a committee of your friends? नहीं, तो committee में कौन है देखो. The committee of the board. And why will this CSR committee be made? To formulate and monitor CSR policy. अब CSR के पॉलिसी में कौन होगा? I told you all. कमिटी के अंदर कौन कितने लोग होंगे? Consist of at least 3 directors, including at least 1 independent director. तो 1 independent director की जरूरत है. बट अगर कंपनी के ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेक्शन 145 में थोड़े रिक्वायरमेंट्स बोले कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना जरूरी है. हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी छोटी कंपनी हो जो तुम्हारे ऊपर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने की जरूरत नहीं है. Where a company is not required to appoint an independent director, it shall have in its CSR committee 2 or more directors. ठीक है, तो नहीं भी हो तो चल जाएगा. We'll see independent directors कब अपॉइंट करना है, वो एक अलग टॉपिक है. Now, directly we have to know the rules also. Company CSR policy rules 2014. It says that every company which ceases to be a company covered under section 135 for 3 consecutive years are not required to constitute a CSR committee. तो वही रिप्लाई वो किया है लोगों ने. फंक्शंस. अब ये कमेटी बनाएंगे तो क्या करेंगे ये लोग? This committee will recommend to the board a policy. और ये पॉलिसी क्या बोलेगा कि कहाँ कहाँ पैसा स्पेंड कर सकते हो, as specified under Schedule 7. They will recommend the amount of expenditure that needs to be done. It will constitute a transparent and monitoring mechanism, and it will monitor the policy from time to time. They will do nothing but oversee the policy, oversee whether the money is being spent properly or not. Now CSR activities. अब जो भी एक्टिविटीज दिए हुए हैं शेड्यूल 7 में, या तो कंपनी खुद से कर सकती है, दे कैन डू इट बाय देमसेल्व्स. मैं खुद ही जाके पॉवर्टी इरेडिकेट करने के लिए निकलूं, या फिर खुद का एनजीओ बनाओ, या फिर क्या कर सकता हूँ, आई कैन कोलैबोरेट विद समवन. तो सोचो कि मैं पीटा के साथ में कोलैबोरेट कर लूं. ओके, सो ईदर आई कैन डू और आई कैन डू इट इन पार्टनरशिप और आई कैन गिव इट टू सर्टेन NGOs, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग NGOs. अब ये NGO भी अगर दे रहे हैं हम लोग तो उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड एटलीस्ट 3 years का होना चाहिए. तो देखो, CSR activities shall be undertaken by the company as stated in the policy. These activities can be done through the company established under section 8, singly or jointly with any other company, or anything with the government. अब ये important है. If the board of the company decides to undertake its CSR activities approved through a company established under section 8, मतलब through a NGO, so that NGO should have been there in existence for that program or projects for at least 3 years. मतलब पुराना NGO होना चाहिए. ऐसे ही कल बनाए NGO और फिर वहां पे डालूं तो नहीं चलेगा. The company may also collaborate with certain projects and programs as specified. Now these programs and projects should be taken in India only. Abroad में बोलेंगे कि भाई abroad के hunger eradicate कर रहे हैं from people in abroad, चलेगा ऐसा? अफ्रीका के people के लिए कर रहे हैं, तब CSR funds हम लोग काउंट करेंगे? No, पहले हमारे Indians का, take care of Indians first. Can we give it to any political party?
No. नो, सो पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, जो मैं कब से बोल रहा था, शेड्यूल 7 तो यहाँ पे दिए, तो दे हैव गिवन थोड़े और 12 दिए यहाँ पे, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्लम एरिया, रूरल डेवलपमेंट, एनी कंट्रीब्यूशन टू इंक्यूबेटर्स फंडेड बाय गवर्नमेंट। इंक्यूबेटर्स रहते हैं फॉर टेक्नोलॉजिकली, यू नो, दे मेक सर्टेन प्लेसेस which helps entrepreneurs develop, so they can have certain technology parks, software technology parks, वहाँ पे जाके हम लोग इंक्यूबेट करते। इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आके ग्रो हो सकते हैं। अब तुम देखो कि तुमको अगर एक एस्ट्रोनॉट बनना है, तुम घर बैठे बैठे एस्ट्रोनॉट बन सकते हो No. ना। तुम बोलोगे नहीं मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, तो घर पे अपने रूम में जाके कैसे एस्ट्रोनॉट बनोगे? यू रिक्वायर इक्विपमेंट्स, यू रिक्वायर अ सर्टेन, you know, facility, infrastructure. So government could set up these infrastructures where scientists can come and do their research. Then National Relief Fund for rural sport, armed forces, etc. So you can read them. These are the activities which are allowed where you can use your funds. ये लोग वापस रिपीट करें, जेंडर इक्वालिटी, फॉर women empowerment, anything for men empowerment. Are there any laws for men? No. No. We have animal rights. That's all. Okay. अभी यहाँ पे देखते हैं one of events जो रहते हैं, like giving it for a marathon or any awards or charitable contribution. One of एक ही बार event है, उधर allow करना चाहिए. So it is not included. ये वन ऑफ इवेंट। वी वांट एक डेडिकेटेड 3 साल तक वो एनजीओ काम कर रहा है, ऐसे जगह पे पैसे दो। सीएसआर पॉलिसी भी तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा वहाँ पे। देन दैट विल बी ऑन द कंपनीज वेबसाइट ऑल्सो, वेयर इज योर सीएसआर पॉलिसी, दैट सीएसआर एक्सपेंडिचर कहाँ पे स्पेंड करना है, तो वो बताएंगे एटलीस्ट 2% ऑफ द 3 years प्रॉफिट। फिर एक नया पार्ट ये लोग ने ऐड किया है यहाँ पे, ये वाले पॉइंट को मार्क कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, दैट एनी अमाउंट बीइंग अनस्पेंट। सोचो मैंने सीएसआर के लिए मेरे को 4 करोड़ स्पेंड करना था, सीएसआर फंड्स मेरे 4 करोड़ थे, मेरे को स्पेंड करना था और मैं नहीं कर पाया क्योंकि मे बी एनी रीजन I could not spend the money, या थोड़ा 50 लाख बच गया, तो मेरे को एक अलग से अकाउंट में डालना चाहिए, अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट, एंड आई शुड ऑल्सो टेल why I could not spend it in the board report. ठीक है? And always when I am planning to develop any region also, so I will always give preference to local areas. Company shall give preference to local areas and certain disadvantaged regions. So you can read all this. Expenditure ये सब repeat कर रहे हैं वो लोग. Only in India will qualify as CSR expenditure. समझ में आया? Then computation of profit. अब ये जो profit है, ये section 198 of Companies Act के अंदर mentioned है. वो net profit वहाँ पे calculation होता है. It is for chartered accountants. They will compute the net profit on basis of certain things. Now, ये एक छोटा सा interesting question है. Let's see whether this will make sense. ये जो part है ना, इसको important mark कर सकते हो. It's just a question that I'm asking. You tell me. यहाँ पे एक कंपनी है, ओके, एक इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी. नाउ पे अटेंशन, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है. कैन वन कंपनी बी अ शेयर होल्डर ऑफ अनदर कंपनी? Yes. Yes. So company A and company B is a shareholder. कंपनी A ने अपना ऑलरेडी स्पेंट CSR फंड्स, ये लोग ने अपना जो CSR फंड्स है बराबर स्पेंड कर दिया. अब ये लोग ने क्या किया, डिविडेंड बांटा.
to the shareholders. So don't you think company B को dividend मिला होगा? Yes. Yes. Should this dividend be added in profits for computation of CSR funds? हम लोग जब बोलते हैं, देखो इसमें क्या है, ये ऑलरेडी पैसा दे दिया है. अब इसके अंदर से इनको वापस जब इंडियन एक कंपनी को मिल रही है फ्रॉम अ इंडियन कंपनी विच हैज ऑलरेडी स्पेंड द CSR फंड, तो डबल बार टैक्स हो जाएगा, डबल बार CSR फंड भरवा दोगे उनको. यही पैसा जिसपे ऑलरेडी भर चुके हैं इनको मिला है, फिर ये लोग बोल रहे हैं फिर ये वाली कंपनी एग्जेम्प्ट रहेगी, उनको उतना अमाउंट CSR फंड्स में काउंट नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी पहली कंपनी भर चुकी है. सो लेट्स सी, आई विल शो यू व्हाट इट इज. See this diagram. अब ये तुम्हारे मॉड्यूल में इतना नहीं है, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग 2% ऑफ द एवरेज 3 years प्रॉफिट, तब ये पार्ट देखो, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम अ इंडियन कंपनी दैट हैज ऑलरेडी स्पेंट CSR, इट शुड नॉट बी काउंटेड इन द नेट प्रॉफिट. इसका लॉजिक क्या है? Dividend itself is a part of profit. Shareholders need not spend on the CSR separately. So shareholder को spend करना पड़ता है क्या CSR profits? CSR shareholder के ऊपर अप्लाई होगा? No. नहीं, तो ये भी कंपनी तो shareholder के स्टेटस में ही है ना, तो this is also a shareholder. Shareholders is receiving this income, तो shareholders के ऊपर नहीं अप्लाई होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है? कंपनी के ऊपर. तो जब इनका भी कैलकुलेशन करेंगे, ये भी कंपनी अगर आ रही है CSR में, तो उतना अमाउंट ऐड नहीं होगा, बिकॉज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ नेचर ऑफ अ शेयर होल्डर दैट यू गॉट द मनी. ठीक है, तो ये ऐसा लिखा है. डिविडेंड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया which need to comply with CSR obligations would not be included in the net profits of the company. Clear? Now coming to the disclosure requirements. किधर disclose करना है कि किधर spend किया मैंने? board report. In the report of the board of directors. और ये board reports किस में attach होता है? Annual report में. और उसका फॉर्मेट भी गवर्नमेंट ने दे दिया है कि कैसे फॉर्मेट होगा, तो पूरा बाइफिकेशन दे दिया है टेबल का. सो दिस यू कैन रीड. और ये जो है CSR पोर्टल भी दे दिया, विच आई वाज सीइंग, csr.gov.in, एक इनिशिएटिव बाय MCA. तो इनके वेबसाइट पे लेट्स सी वैसा आया है या नहीं. तो ये रहा अपना. कौन सी कंपनी देखा हम लोग ने? टाटा कंसल्टेंसी लिमिटेड. अब इनका कौन से ईयर का एक्सपेंडिचर देखना है? लास्ट ईयर का देखते हैं, तो सबके इतने डिटेल्स निकाल सकते हैं. सो इनका एवरेज प्रॉफिट, CSR स्पेंड एंड लोकली स्पेंड. सो दे हैव गिवन CSR प्रोजेक्ट कौन सा है, कौन सा सेक्टर में वो लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन, एनवायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी इरेडिकेशन. और पैन इंडिया मतलब क्या? Presence across the nation. Presence across the nation है. तो they are spending for all these purposes. कितना प्रोजेक्ट का पैसा दिया ये लोग ने? अमाउंट स्पेंड. So they are spending so much money. 920 crore. 920. 92 crores ना? 92 crore, yeah. Yeah. 92 crores खाली एक ही अकाउंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स में. एजुकेशन के लिए वापस इतना, फिर इतना. So they are spending a lot. Disaster relief for including cancer institutes, sanitization, etc. So the total amount that they have spent is this much. So यहाँ पे amount spent and project का cost. समझ में आया? तो ऐसे तुम कोई भी कंपनीज का डिटेल निकाल सकते हो कि कितना वो लोग CSR में स्पेंड कर रहे थे. यहाँ से टाटा हटा के you can see how much they are doing. And not only that,
we're almost done with the chapter, but I'll just tell you, एक उनको जो पॉलिसी बनानी पड़ती है ना, वो भी देना पड़ता है उनको. तो CSR पॉलिसी ऑफ कौन सी कंपनी का देखना है? टाटाज, इन्फोसिस, विप्रो, कोई भी कंपनी का डाल सकते हो, उनका CSR पॉलिसी मिल जाता है. तो सोचो अगर मैं इन्फोसिस का देख रहा हूँ, तो इन्फोसिस का कहाँ पे स्पेंड कर, आई टोल्ड यू ना, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है. तो पॉलिसी ऐसी होगी. So it is the CSR policy of Infosys. Preamble दिया है, every company जो इधर है उनको इतना स्पेंड करना है. विजन, lightening young minds and enhancing skills. फिर वो लोग की कमिटी बनी होगी. तो कमिटी में कौन कौन है? 3 डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो ये लोग ने लिखा है. फिर कमिटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? क्या होता है कमिटी, क्यों बनाते हैं? टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, recommend the amount, see whether the money is spent. Composition of committee, तो कौन कौन है? तो गोस्वामी is there, Radhakrishnan and Kumar. Okay, so these are the compensation. The scope of the committee. Scope of the committee भी कौन सा तुमको दिख रहा है? ऐसे जो activities दे रहे लोग, कहाँ दिखी है activities? Schedule 7. ये अपना Schedule 7 के अंदर दिया हुआ है. तो ये सब के लिए वो लोग स्पेंड कर सकते हैं. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स किधर डिस्क्लोज होगा? सो दे आर सेइंग इट विल बी अटैच्ड टू द बोर्ड रिपोर्ट, which will then be attached to the annual report and sent every year. And then general information and the policy gets over. So 4 of 4. देखा? तो we have finished the पूरा पॉलिसी. ऐसी कोई भी कंपनी का पॉलिसी होती है. आगे देखते हैं CSR पोर्टल. And then they have given you the format for the annual report. के पहले brief outline of the company होगी. Like as we saw, Infosys is a public company. Then they will give you the committee. Then they will give you the average net profit कितना है. Then they will say the prescribed amount and details of the amount spent. So ये उनका format दे दिया है, उनको यहाँ पे fill करके देना है और यहाँ पे signature आ जाएगा. And that is it. So frequently asked questions also, you can read it, just FAQ. And then your chapter gets done. So very important chapter, expect a question from you for sure. What is the role of the CSR committee? ABC failed to contribute towards despite falling under the category. What are the consequences? तो consequences भी जानना है तो अपना CSR का section 135 भी पढ़ सकते हो. सबसे पहले में वो लोग थ्रेशोल्ड दे रहे हैं, किसको भरना है. सेकंड में बोर्ड रिपोर्ट है. थर्ड में कमिटी के क्या काम है जो शेड्यूल 7 में बांटेंगे. फोर्थ में बोर्ड रिपोर्ट will disclose on the company's website. Fifth, the board of every company shall ensure that they spend at least 2%. And if they don't spend, they have to put in the unspent amount, should be told where they are spending it. Sixth and seventh में तुम्हारा आंसर है. क्या है? वो लोग ने बोला व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज नहीं करोगे तो काफी बार आई हैव सीन कंपनीज के ऊपर ये केस हुआ है वेर उन लोग ने बोला कि कंपनीज को कभी कभार पता ही नहीं चलता कि उनका लिमिट क्रॉस हो गया, CSR का लॉ अप्लाई हो गया. So if a company contravenes the provision, the company shall be punishable with a fine of not less than 50,000, which may extend to 25 lakhs. And every person, officer in default, will be imprisonment of a term which may extend to 3 years and shall not be less than 50,000. And this fine भी लगे. समझ में आया? तो subsection 7 important है. 135 subsection 7 कि क्या consequences क्या है. तो डायरेक्टर्स बहुत डरते हैं जब भी कोई भी सेक्शन में जेल के बारे में आता है ना, इम्प्रिजनमेंट, तो एकदम डर जाते हैं वो लोग कि यार अगर हम लोग ने CSR का पैसे दिए नहीं, कमेटी नहीं बनाए, पॉलिसी नहीं बनाए, डिस्क्लोजर नहीं दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम लोग को तो जेल होने का चांस है. तो डर जाते हैं एकदम. Imagine directors are like big directors. They get scared. What are the means and channels that they can adopt to pursue CSR activities?
सो CSR एक्टिविटीज में भी वो लोग बोल रहे हैं या तो ओन या तो पार्टनरशिप। अब वो लोग ने ये भी दिया है कि तुम ये जो CSR कर रहे हो कहाँ कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते हो। कैन नॉट अलाउड तो शेड्यूल 7 में अलाउड है, कहाँ कर सकते हो, कहाँ अलाउड नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है। Where you cannot, can you give it for the benefit of your own employees? No. No. Can you spend for your ordinary course of business? वही CSR का पैसा बिजनेस में लगा दूं चलेगा? No. फिर क्या ये पैसा मैं अपनी ही कंपनी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट के लिए लगा दिया तो भी नॉट अलाउड। Okay, so these are the things that you cannot do. Can I give it to any political party? So answer is no. So CSR का जो पैसा है it should be given to the needy people. So that is it and we are done with the chapter.